ابھی دیکھ لیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان سے میری بحث ہے کہ ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ گھر میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی موت کا چرچا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی چرچا کر ڈالے تو اس کو برا مانا جاتا ہے کہ صاحب مزے کو کیوں کرکرا کر دیتے ہو، وہ تو جب آنی ہے آ جائے گی، لیکن ابھی وقتی لذتوں کو ختم کر دینا کیوں چاہتے ہو تم؟ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ اکثرو ذکر حادم لذات الموت، حضور نے کہا تھا کہ لذتوں کو ڈھانے والی چیز، یعنی جو تمہاری لذتوں کو ڈھا دے اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ حضور نے کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ یاد کرو، میکسیمم تیری گفتگو کا جو ٹاپک ہو وہ موت ہو۔ لیکن ہم نے اپنے حساب سے موت کو بوجھ سمجھا اور ہم نے صرف زندگی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ زندگی کی باتوں کا مطلب نئی نئی عمارتیں، نئی نئی زمین کی خریداری، نئے نئے مال، نئے نئے سامان کو گھر میں جمع کرنا۔ ہم نے اس کو اس طرح اپنی ساری جدوجہد کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جیسے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد مال حاصل کرنا ہو۔ ریزلٹ کیا ملا؟ اس کے بدلے میں خطرناک بیماریاں، اس کے بدلے میں زندگی کی تلخیاں، اس کے بدلے میں آپس کی دوریاں، اس کے بدلے میں نیند کی کمی، اس کے بدلے میں 1 درجن بیماریاں۔ چونکہ ہم نے سکون کا یہ راستہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے انہیں ہم نے اپنے سے چنا ہے، ہم نے فلم کے ایکٹر کو دیکھ کر چنا ہے، ہم نے پولیٹیکل لیڈر کی باتوں کو سن کے چنا ہے، ہم نے دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے چنا ہے، ہم نے اپنے سراؤنڈنگز آس پاس کے لوگوں کو دولت کے مقابلے میں جیتے ہوئے دیکھ کر میں نے ان کو دیکھ کر کے اس راستے کو چنا ہے۔ نتیجے میں زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی زمین کی تخلیق کی ہے، آسمان بنایا ہے، اللہ ہی مجھے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس رب سے ہٹ کر میں نے دوسروں کو دیکھا، اللہ نے ماڈل تو اپنے محبوب کو بنایا تھا، میرے محبوب کو دیکھو زندگی گزارو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس کے نور کو ساری دنیا کی تخلیق سے کئی لاکھ سال پہلے اسے عرش معلیٰ پہ قندیل کی شکل میں لٹکا کے رکھا، اس نور محمدی کو بشری شکل میں سارے پیغمبروں کے اخیر میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل رہیں مصطفیٰ، لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائیں مصطفیٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنایا تھا، مگر میں نے آئیڈیل فلم کے ایکٹر کو چن لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ماڈل بنایا تھا کہ کیسے جئیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے کپڑا پہنے، کیسے بال رکھیں، مگر ہم نے فلم کے جوکر کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ وہ اگر ننگا رہے تو میں بھی ننگا رہتا ہوں، وہ اگر نیا کپڑا پھٹا ہوا پہنے تو میں بھی ویسا پہنتا ہوں، وہ اگر جوکر کی طرح بال چاروں طرف سے مونڈ کے رکھے تو میں بھی ویسا رکھتا ہوں۔ ان کی بہو بیٹیاں اگر چڈی پہن کے سڑکوں پہ چلیں میں بھی اپنی بہن بیٹیوں کو چڈی پہنواتا ہوں، چونکہ ہمارے لیے ماڈل وہ فلم کا ایکٹر اور فلم کی ایکٹریس بن گئی ہے۔ اللہ نے تو محبوب کو ماڈل بنایا تھا، زمین کا خالق اللہ، ساری دنیا کا مالک اللہ، اس انسان کو ایک قطرہ ذلیل سے پیدا کرنے والا اللہ، یعنی اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے تجھ کو پیدا کیسے کیا ہے تاکہ میرا بندہ چاہے دنیا میں غریب رہے یا امیر، بادشاہ رہے یا فقیر، وہ اپنی بنیاد کو کبھی نہیں بھولے کہ میری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، میں پیدا ہوا کیسے ہوں۔ جب عقل رہے گی تب نہ بندہ غور کرے گا کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں، میں اپنی پیدائش پہ غور کروں۔ جب قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس میٹر کو جگہ دیا گیا ہے، کیوں جگہ دیا گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو، وہی جو ہم انسان ہیں، دنیا کے سارے لوگ جو چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، وہ سب بھی انسان ہیں، چونکہ وہ غور نہیں کرتے کہ میں انسان ہوں، اسی لیے جانوروں کی طرح کام لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جس دن وہ غور کرے کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے، دنیا سے حیوانیت گھٹ جائے گی اور مانوتا کے سلوک بڑھتے چلے جائیں گے، چونکہ بندہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں انسان ہوں۔ صرف اسی پوائنٹ پہ غور کر لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا،
अल्लाह चाहता तो मुझे खिंजीर पैदा करता, अल्लाह चाहता तो मुझे कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे छिपकली और सांप बना देता। मेरे बाप दादा ने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। बंदा अल्लाह पर एहसान कर ही क्या सकता है? यह कमजोरी का पुतला यह इंसान, बीमारियों का मुजस्समा यह इंसान, आज सारी दुनिया जानती है कल इसका नामो निशान मिट जाता है, आज जिंदा है एक सेकंड के बाद मर जाता है। यह इंसान अपने रब पे एहसान कर ही क्या सकता है कि उस एहसान का बदला अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को इंसान पैदा करके चुकाए। मेरा रब पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह का यकतरफा एहसान है कि उसने मुझे इन जानवर नहीं बल्कि इंसान पैदा किया। अल्लाह ने मुझे कुत्ता नहीं आदमी बनाया, वरना कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया। जितनी भी मखलूकात हैं सबों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुझको इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया के सारे लोग गौर करें कि अल्लाह ने मुझे सांप नहीं इंसान बनाया, तो इंसान बनकर सांप की तरह दूसरों को डंक नहीं मारेगा, इंसान की शक्ल में दूसरों को अपनी जबान से डंक नहीं मारेगा, अपने हाथ से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को तलवार से ज़बह नहीं करेगा, वह दूसरों को अपनी थ्योरी से उसे तबाह बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाएगा। ये जो सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरों का बच्चा बच्चा नहीं, मेरी बस्ती बस्ती है, दूसरों की बस्ती बस्ती नहीं, मेरा मुल्क मुल्क है, दूसरों का मुल्क मुल्क नहीं, ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जब आदमी अक्ल से सोचना छोड़ जाता है, छोड़ देता है, तब इस तरह की हैवानी हरकतें बंदा करने लगता है। आज जो कुछ भी हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, यानी एक आदमी के जिस्म को 3 हिस्सों में बांट देना, एक आदमी को 6 इंच छोटा कर देना, एक आदमी को हमेशा किसी न किसी तरीके से फंसा के जेल में डाल देना, उसकी पूरी सोसाइटी, उस पूरी बिरादरी को मिटाने का प्लान बनाना उस वक्त होता है जब बंदा अपने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ देता है कि मैं इंसान हूं और इंसानियत का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का डिमांड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इसकी क्वालिटी है, इसकी खसलत है, इसे क्या करना चाहिए वह सोचना छोड़ देता है। हुजूर ने कहा था कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, जब अकल छीन ली जाएंगी तो सिर्फ आदमी बर्गर खाएगा, सिर्फ आदमी चाउमीन खाएगा, सिर्फ आदमी शराब पिएगा, सिर्फ आदमी ताश खेलेगा, सिर्फ आदमी रात में नाइट क्लब का रुख करके डांस करेगा ताकि हम रिफ्रेश्ड हो जाएं, तरोताज़ा हो जाएं। वह भूल जाएगा कि नाचते नाचते बंदा मर गया, शराब पीते पीते आपस में कत्ल हो गया, ताश खेलते खेलते दौलतें बिक गई, जमीन लूट गई, यहां तक कि बीवी और बेटियों को दांव पे लगाना पड़ा। ये आदमी सोचना छोड़ देगा, वह सिर्फ उसको बर्गर और चाउमीन, चाहे लीवर डैमेज हो, चाहे उसका हार्ट डैमेज हो। आज सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी से बचना है, जो जंक फूड है इसको खाना छोड़ दें, जो भी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं बीड़ी पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे, तो इन अननेसेसरी चीजों को छोड़ दें, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें, बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मजा लेने के लिए खाते हैं, अब उसे छोड़ दें, उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी वीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं, ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है,
वह जानता है कि उसकी जबान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वत गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। ये पीने में मजा आता है, ये खाने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है। तो आज जब इस घूमने का गलत असर सेहत पे सोसाइटी पे पड़ा, तब डॉक्टर चीखते हैं कि खबरदार रात में 10 से ज्यादा ना जागें और जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होगी, इससे आपकी हेल्थ चूर चूर हो जाएगी। आज 18 साल का जवान देखें, बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है मुर्दार की तरह, आंखें धसी हुई, चेहरा चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी ये मायूसियत का शिकार है। सेहत हासिल करने के लिए दूसरी कौमें बेदार हो गई। अब साहब वो रामदेव जी के पास उत्तराखंड जा रहे हैं। रामदेव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आओ, यानी कुदरती चीजों की तरफ आओ। जो चीजें नेचुरल हैं, जो चीजें आर्टिफिशियल हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बनावटी चीजों को छोड़ दिया जाए और नेचुरल चीजों के पास आए और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आप घूमें, यानी आप सुबह सवेरे जन्नती हवाओं में रहें। एसी की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, फैन की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है। रात में 8 घंटे फैन के नीचे है, बदन सुबह सवेरे ऐंठने लगता है। एसी में आप रहें, अंदर से 8 घंटे सोने के बाद एक उलझन सी महसूस होती है, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में आप घूमें, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से सीधी हवा उसकी सेहत को दुरुस्त कर रही होती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी, तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे घर जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, यानी बिल्कुल सुरक्षित रहो, बाहर मत घुमा करो। समंदर में जुहू चौपाटी के किनारे रात के 9 बजे के बाद लोग 2-2 बजे रात तक घूमते थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के कहते थे घर में रहो, सेफ रहो, अपने घर में आइसोलेट रहो, सेफ रहो, यानी बाहर की हवाओं से बचते रहो। यही काम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने किया था। हुजूर ने कहा था, आज की तारीख में कहते हैं गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी घूमना, ये तबाही का जरिया है। सेहत जाएगी, सुकून जाएगा, समाज में जीने की लज्जतें जाएंगी, जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जरूरी है रोटी चावल, जरूरी है चाउमीन नहीं, बर्गर नहीं, और गैर शराब नहीं, गैर गुटखा नहीं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे अगर जिंदा रहना है। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी दूसरों से ताल्लुकात कायम करना, अननेसेसरी चीज जो नेसेसरी एसेंशियल है उसको अपनाए, जो गैर जरूरी को छोड़ दें। कुर्बान रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि 1500 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के इल्म की कोई कहानी थी। हिंदुस्तान में एक मकतब तब नहीं था। 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, बुद्धिस्टों की एक छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया
दुनिया जानती थी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला यानी। मुस्तफा ने कहा था, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तन्हा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकार दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है, उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्त व बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है, वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट्स चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म, यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, यह फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं,
फंस जाए, मर जाए, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है, जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा, जिनके पैसे को पानी की तरह बहा करके वह कुर्सियां खरीदेगा। यह इंसान का बनाया हुआ ज़ाब्ता फेल हो चुका है। इसलिए दुनिया में कम्युनिज्म भी फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो निजाम किसका कामयाब है? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, यह इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है। इंसान का कानून जब इंसान पे चलेगा तो इंसान की एक बड़ी बिरादरी उस फायदे से महरूम रहेगी, लेकिन जब इंसान के खालिक का कानून चलेगा तो अमेरिकियों का भला होगा, हिंदुस्तानी का भला होगा, चाइनीज का भला होगा। क्योंकि अल्लाह का कानून है वह सारे बंदों के लिए भला होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि देख मुस्तफा को कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफा को कोई क्रिश्चियन भी देखे, जन्नत भले ना मिले दुनिया में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा को यहूदी क्यों ना देखे, भले जन्नत नहीं मिलेगी बदअकीदगी कुफ्र की वजह से, मगर दुनिया में कामयाब होगा। मुस्तफा को कोई गैर मुस्लिम देख के जिंदगी गुजारे, जन्नत नहीं मिलेगी मगर दुनिया में अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया वाले नाकाम होते हैं कब? जब अपना उसूल चलाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया में उसूल अल्लाह का चलेगा, जिस दिन दुनिया में कानून मुस्तफा का चलेगा, उस वक्त झोपड़ी में भी बादशाहों जैसी काबिल रश्क जिंदगी मिल जाए।